اللہ کہیں گے کہ آج کے دن عزت ان لوگوں کی ہے جو رات کو نماز پڑھا کرتے تھے. این الذین، وہ لوگ کدھر ہیں کہ ان کی تجارت نے اور ان کے کاروبار نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا تھا. آج عزت ان لوگوں کی بھی ہے. اور این الحمادون، تعریف کرنے والے لوگ کدھر ہیں جو اپنے اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اللہ انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن اپنے دائیں طرف لگے ہوئے نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. انصاف کرنا پڑے گا. باپ ہے، اولاد کے درمیان انصاف کیجئے. خاوند ہے، بیویوں کے درمیان انصاف کیجئے. اللہ نے استاد بنایا ہے، شاگردوں کے درمیان انصاف کیجئے. قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قیامت کا دن ہوگا، بہترین قرآن پڑھنے والا قاری جو خوش اسلوبی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کا جو مقام ہے وہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہوگا. اللہ اسے عام لوگوں میں کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ نوازا ہے، جہاں وہ کھڑے ہوں گے، یہ خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ بھی دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے بھلائی ہے، اور وہ قیامت کی جو گھبراہٹ ہے اس سے محفوظ ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک وقت آئے گا تمام کے تمام لوگ فوت ہو جائیں گے. ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہر شخص کو میدان محشر کی طرف بھاگنا ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی نتیجہ ہے جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. اللہ کی طرف سے قیامت کے دن کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے بڑی عزت کے ساتھ نوازا جائے گا. میں آج کی مختصر نشست میں ان چند خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ قیامت کے دن ان کو بڑی عزت کے ساتھ نوازیں گے. آپ میں سے ہر شخص اس بات کا طالب ہے کہ معاشرے میں اس آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، لوگ اس کا احترام کریں، لوگوں کے نزدیک اس کی ایک حیثیت ہو. لیکن یاد رکھیے گا، حقیقی عزت وہی عزت ہوتی ہے جسے اللہ قیامت کے دن عزت عطا کر دیں. تو میں چند باتیں بڑے اختصار سے ذکر کروں گا. پہلا خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے قیامت کے دن بہت بڑی عزت کے ساتھ نوازنا ہے، یہ خوش نصیب انسان آپ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ خوش نصیب انسان میں بھی بن سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں نہیں ملے ہوں گے، لوگوں کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن کوئی خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے قدم چمک رہے ہوں گے. یہ دور سے آنے والے لوگ ایک خاص اپنا تعارف رکھیں گے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ کی طرف سے سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی قیامت کے دن تو امتیں بہت ساری ہوں گی،
लोग बड़ी तादाद में होंगे। आप अपनी उम्मत को किस निशानी और किस अलामत से पहचानेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत जब क़यामत के दिन आएगी, उनके जो वुजू के आज़ा हैं वो वुजू की वजह से चमक रहे होंगे और अल्लाह की तरफ से उन्हें सोना और उसके कंगन पहनाए जाएंगे जो शख्स दुनिया में वुजू किया करता था। अब ये आदमी की शनाख्त और अलामत होगी। कायनात में जितने भी लोग नमाजों के लिए वुजू करते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए एक खास एजाज है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होगा। जबकि हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, अल्लाह की तरफ से हाथ चमक रहे होंगे। कोहनियों तक इस आदमी को सोने के कंगन पहनाए हुए होंगे। इसका चेहरा रोशन होगा, पांव रोशन होंगे। हर शख्स पहचान जाएगा कि ये वो खुशनसीब इंसान है जो दुनिया में नमाज पढ़ा करता था। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता तो क्या ये मकाम मुझे क़यामत के दिन मिल सकता है? दूसरा खुशनसीब आदमी, हमारे मुआशरे में अगरचे उसकी कोई खास हैसियत नहीं है, आप उस आदमी को देखिए तकरीबन उसने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। हमारे नजदीक उस इंसान की कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने क़यामत के दिन जो उसे एजाज देना है, वो इंसान, किसी इंसान को अल्लाह ने वो एजाज नहीं देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल मुअद्दिनून अत्वलुन नासी अअनाक़न यौमल क़ियामा। क़यामत का दिन होगा, जो शख्स दुनिया में अल्लाह के घरों में अजान दिया करते थे, क़यामत का दिन होगा इनकी गर्दनें लोगों से बहुत ज्यादा बुलंद होंगी। ये एजाज होगा, अल्लाह की तरफ से एक इनाम होगा। कायनात में मौजूद हर शख्स पहचान जाएगा कि ये खुशनसीब आदमी जिसे हम मस्जिद में खादिम की हैसियत से जाना करते थे, हमारे नजदीक ये एक आम इंसान हुआ करता था। हम उसे कोई बहुत बड़ा इंसान भी नहीं समझते थे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उसे सारे लोगों से बुलंद कर देगा। और ये एजाज कोई थोड़ा एजाज नहीं है। हर शख्स पहचान जाएगा कि ये खुशनसीब इंसान है जो दुनिया में लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दिया करता था। ये खुश नसीब इंसान दुनिया में अजान पढ़ने वाला है। अल्लाह क़यामत को इसको भी बहुत ज्यादा इज्जत के साथ नवाजेंगे। तीसरा खुश नसीब, अभी आपने नमाज पढ़ी और रोजाना नमाज पढ़ते हैं, कुर्रा आपके पास तशरीफ लाते हैं, अपनी खूबसूरत आवाजों में आपको तिलावत सुनाते हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल माहिरु बिल कुरआन मअस्सफरतिल किरामिल बररा। क़यामत का दिन होगा, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला कारी जो खुश उसलूबी से कुरान मजीद की तिलावत करता है, उस इंसान का जो मकाम है वो कोई छोटा मकाम नहीं होगा। अल्लाह उसे आम लोगों में खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि वो मअस्सफरतिल किरामिल बररा, अल्लाह के जो खास फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत के साथ नवाजा है, जहां वो खड़े होंगे, ये खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत करने वाला भी फरिश्तों की सफों में खड़ा होगा। ये इंसान होगा, फरिश्ता नहीं होगा, लेकिन इसका मकाम बहुत बड़ा है, इसका एजाज बहुत बड़ा है कि अल्लाह क़यामत के दिन इस इंसान को आम इंसानों के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह अपने नूरानी फरिश्तों की सफों में इसको खड़ा करेगा। ये एजाज आप भी हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद को बेहतरीन अंदाज से पढ़ना, इसकी तिलावत करना दुनिया में भी अपने हमारे लिए इज्जत का बायस है, लेकिन क़यामत के दिन जो इसकी वजह से अल्लाह ने एक कारी को इज्जत देनी है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जहां पे बड़े बड़े फरिश्ते खड़े होंगे,
अल्लाह उनकी सफ़ों में इस इंसान को खड़ा करेगा जो कुरान का बेहतरीन कारी था और अच्छे अंदाज में कुरान को पढ़ने वाला था। क़यामत के दिन अल्लाह एक और शख्स को बहुत बड़े एजाज के साथ नवाजेंगे। ये एजाज अल्लाह करे मुझे नसीब हो जाए। आप इस मिंबर पे बैठते हैं और ये एक मिंबर है। इस मिंबर पे बैठने वाले का एक एहतराम होता है, मकाम होता है, उसकी एक आज़मत होती है। हम में से जो आदमी मिंबर के काबिल होता है, लोग उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं। लेकिन क़यामत के दिन भी कुछ मिंबर लगाए जाएंगे। सुनन अबी दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह अपनी कुर्सी के ऊपर बराजमान होंगे, अल्लाह अपनी कुर्सी के ऊपर मौजूद होंगे और अल्लाह की कुर्सी के दाईं तरफ कुछ खूबसूरत नूर के मिंबर लगे होंगे। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो मिंबर होते हैं या तो लोहे का होगा या लकड़ी का होगा या शीशे का होगा या पत्थर का होगा। अल्लाह क़यामत के दिन अपनी कुर्सी के दाईं तरफ जो मिंबर लगाएगा वो मिंबर आम मिंबर नहीं होंगे बल्कि नूर के मिंबर होंगे और अल्लाह कुछ लोगों को उन मिंबरों पे जगह देंगे, उन मिंबरों पे जगह देंगे। सारी कायनात वहां पर मौजूद होगी। आदम से लेके क़यामत की सुबह तक जितने भी इंसान हैं तमाम के तमाम वो लोग वहां पर मौजूद होंगे। अल्लाह कुछ लोगों को अपने पास बुलाएंगे और अपने साथ लगे हुए नूर के मिंबरों पर बिठा देंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप में से या हम में से कोई आदमी जुर्म कर बैठे और उसे अदालत में जाना पड़े, काजी और जज मौजूद हो, हाथ कड़ियां उसको लगी हो, वो उसको अपने पास बुला ले कि तुम्हारे बारे में जो फैसला है मैं वो बाद में करूंगा, अभी वहां पे खड़े आप अच्छे नहीं लगते, तशरीफ लाइए मेरे साथ आकर के बैठ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि उस मुजरम को कोई परेशानी होगी? वो समझेगा कि कादी और जज मेरी हैसियत को जानता है, मुझे एहतराम और मकाम दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे हक में फैसला करेगा। अभी हिसाबो किताब नहीं हुआ होगा। अल्लाह कुछ लोगों को बुला करके अपने साथ लगे हुए नूर के मिंबरों पर बिठा देंगे। ये एजाज किन खुशनसीब लोगों का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इंसाफ करने वालों को अपने पास बुला के नूर के लगे हुए मिंबरों पर बिठा देंगे। वो लोग जो इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह ने काजी जज बना दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने हर उन लोगों के हक में फैसला देना है जो मेरी जात से ताल्लुक रखते हैं या मेरे खानदान से ताल्लुक रखते हैं या मेरी पार्टी और मेरी जमात से वो ताल्लुक रखते हैं। नहीं, वो ये देखते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, इंसाफ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रिवायत में फरमाया कि अगर वो बाप है अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करता है, अगर वो खामद है अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ करता है, या वैसे लोग उसके पास झगड़ा लेकर के आते हैं, वो तरफदारी नहीं करता, रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखता, अपने करीबी और ताल्लुकदारों के हक में फैसला नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है गलत कौन है सही कौन है, फिर जो सही होता है उसके हक में फैसला करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिर, अल्लाह इंसाफ करने वालों को क़यामत के दिन अपने दाईं तरफ लगे हुए नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे। इंसाफ करना पड़ेगा। बाप है औलाद के दरमियान इंसाफ कीजिए, खावंद है बीवियों के दरमियान इंसाफ कीजिए, अल्लाह ने उस्ताद बनाया है शागिर्दों के दरमियान इंसाफ कीजिए। अगर आप अपने गली मोहल्ले में आपकी एक हैसियत है, लोग आपके पास झगड़ा लेकर के आते हैं, इंसाफ के साथ फैसला कीजिए, अल्लाह क़यामत के दिन बहुत बड़ी इज्जत के साथ नवाजेंगे। एक खुशनसीब इंसान और भी है जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत के साथ नवाजना है क़यामत के दिन। इस आदमी का मकाम इतना ऊंचा होगा, अल्लाह ने जो इसको एजाज दिया होगा
लोग रश करेंगे इस इंसान को देख करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला रुऊसिल खलाइक। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक बंदे को अपने पास बुलाएंगे और उस बंदे के सामने जन्नत की हूरों को पेश किया जाएगा। अल्लाह एक इंसान को बुलाएंगे और उसका एक खास मकाम और खास जगह होगी। अला रुऊसिल खलाइक, कायनात में जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम की मौजूदगी में, यानी सभी लोग मौजूद होंगे। अल्लाह एक बंदे को अपने पास बुलाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की हूरों को उसके सामने करेंगे। यानी मैं अपने अल्फाज में कह सकता हूं कि जन्नत की तमाम जो हूरें हैं वो उसके सामने खड़ी कर दी जाएंगी और उस इंसान से सवाल किया जाएगा, जिस हूर के साथ तुम निकाह करना चाहते हो अल्लाह उस बंदे का उसके साथ निकाह करवा देंगे। ये खुशनसीब इंसान कौन हो सकता है? अल्लाह की कसम है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। एक काम करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़म गैज़न, जो बंदा गुस्से को पी जाता है। आप जानते हैं तबीयतों में गुस्सा होता है, हमारे अंदर परेशानी की वजह से, मुसीबत की वजह से या किसी मिजाज के खिलाफ काम हो जाए गुस्सा आ जाता है, इंसान की फितरत है। लेकिन ये इंसान गुस्से में लाल पीला नहीं होता, गुस्से का इजहार नहीं करता। ये इंसान क्या करता है, उस गुस्से को पी जाता है। लेकिन गुस्से को पीना ही काफी नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इस बात पर कुदरत भी रखता है कि अपने गुस्से का इजहार कर सकता है। यानी एक वो इंसान है, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, गाली निकाल दी, अब वो बंदा कमजोर है, खामोश हो जाता है और ये समझता है कि मैंने गुस्सा पी लिया। नहीं, वो आदमी जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, अफराद में कुव्वत में ज्यादा था, ज्यादती करने वाला उससे कमजोर था, बावजूद इख्तियार के कि ये आदमी उसको माफ कर देता है। अल्लाह क़यामत के दिन ये एजाज इस खुशनसीब इंसान को देंगे। सारी दुनिया के सामने अल्लाह उसकी पसंदीदा हूर के साथ निकाह करवाएंगे और हदीस कहती है अला रुऊसिल खलाइक, यानी ऐसा दुल्हा होगा जिसकी निकाह में अंबिया भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सालिहीन भी होंगे, सहाबा भी होंगे और मुहद्दिसीन भी होंगे। इसकी निकाह की तकरीब में कायनात में मौजूद हर शख्स होगा और निकाह करवाने वाले हमारे महल्ले के खतीब साहब और इमाम साहब नहीं होंगे, बल्कि खुद अल्लाह की जात होगी। ये एजाज आप भी हासिल कर सकते हैं, हमें भी इस एजाज को हासिल करना है। आखिरी बात, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात को एक चटियल मैदान में जमा करेंगे और एक आवाज लगाने वाला एक आवाज लगाएगा, सयअलमु। आज के लोग, जब सारे के सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, लोग जान लेंगे कि आज के दिन इज्जत किसकी है, आज के दिन अल्लाह ने इज्जत किस इंसान को देनी है। अब ये आवाज लगाने वाला जब ये आवाज लगाएगा, हर शख्स के कान खड़े हो जाएंगे, सुनेगा कि आज अल्लाह ने इज्जत किस इंसान को देनी है। आवाज लगाने वाला दोबारा आवाज लगाएगा, लोग जान लेंगे कि आज के दिन इज्जत किसकी है। वो तीसरी दफा बोलेगा, लोग जान जाएंगे आज के दिन इज्जत किस इंसान की है। अब लोग जब सुनेंगे तो वो आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, ऐनल्लज़ीना कानत ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, कायनात में वो लोग आज किधर हैं जिनके पहलू बिस्तरों से उठ जाया करते थे। रात जब लोग आराम कर रहे होते थे, कहां हैं वो लोग जो रात को खड़े होके नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे, जो कयाम किया करते थे, अल्लाह के सामने खड़े हो जाया करते थे और नमाज पढ़ा करते थे, दुआ किया करते थे, कयाम रुकू सजदा करने वाले थे। अल्लाह कहेंगे कि आज के दिन इज्जत इन लोगों की है जो रात को नमाज पढ़ा करते थे। ऐनल्लज़ीना, वो लोग किधर हैं कि उनकी तिजारत ने और उनके कारोबार ने उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं किया था। आज इज्जत उन लोगों की भी है। और ऐनल हम्मादून, तारीफ करने वाले लोग किधर हैं जो अपने अल्लाह की तारीफ किया करते थे, जो अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आज वो लोग किधर हैं। और कायनात में मौजूद हर शख्स जान जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इज्जत उस इंसान की है
جو رات کو نماز پڑھتا ہے، نماز تراویح، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، آج کے دن عزت اس انسان کی ہے۔ تو بھائیو، دنیا میں ہمیں جو عزت ملتی ہے بڑی عارضی عزت ہوتی ہے، اور یہ بڑی حقیر سی عزت ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اس زندگی کو کھپا دینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اخروی جو عزت ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔